कि नॉर्मलाइजेशन पहले पढ़े, बोलो किसको पढ़े? 5 मिनट टाइम है, 10-10 पे स्टार्ट होता है। किसको पढ़ाया जाए पहले? और बाकी जो डेवलपर लोग है ना, इंटर्नशिप वाले, ध्यान से सुनो आप लोग। यूआई खतरनाक बंदा बनाया है, लॉजिक लगाने में हालत खराब हो जाएगा, इसलिए आप लोग क्या करना, थोड़ा अच्छे से कोडिंग करना। तुषार तो घर चला गया आज, एक दिन मैं क्लास रखवाता हूँ कि चैट जीपीटी से बात कैसे करना है कोडिंग के लिए स्पेशली। हालांकि आप लोग एक्सपर्ट हो, लेकिन फिर भी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग जो होता है ना, उस टाइप के, ताकि प्रोजेक्ट को, किसी भी बड़े लेवल के लॉजिक को आप हम लोग लिख सके। ठीक है नाल? ऐसा बोलता नहीं है। यस सर। ये सुभाष सुभाष बोल रहे थे कि सर वो लोग इतने जो है ना बोरिंग लोग है कि हम 10 बार बोलते थे, 1 बार बोलते थे। ऐसे कौन ट्रेनिंग सर देगा? आप लोग फील होना चाहिए सर ना कि कोई बंदा सुन रहा है। ऐसा सब लगता नहीं है बोलता है, जैसे हम तो बोल ही रहे थे, अभिषेक तो बोल ही रहा था। देखो, क्लास का मतलब इंटरेक्शन होना जरूरी है, नहीं तो पता चलता है कि यस। हम पढ़ा रहे हैं, हम पढ़ा रहे हैं। इस क्लास, लाइव क्लास तुम 2 घंटे भी देख सकते हो, 1 घंटे देख सकते हो, लेकिन यूट्यूब का वीडियो 1 घंटे 2 घंटे नहीं देख सकते। रीजन कि वहां पे इंटरेक्शन नहीं हो पाती है। नींद आ जाता है सर उसमें। ठीक है ना? तो यूट्यूब का 1 घंटा वीडियो देखने में ना कि बेचैनी ले लगेगा, लेकिन 1 घंटे नहीं 2 घंटे भी आप लाइव क्लास कर सकते हो, क्योंकि इंटरेक्शन होना जरूरी होता है लाइव क्लास में। यस। आपने बोलो, सुभाष बोल रहा था कि हालांकि आज आया था ऑफिस, तो उसकी तबीयत कुछ नाजुक थी, इसीलिए जो है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं तब, इतने ही लोग आज तक ज्वाइन भी किए हैं। अनुभव चलो, ज्वाइन नहीं किया सर। हाँ कल उसका एग्जाम है टीसीएस का। चलो पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले नंदिनी से पहले क्वेश्चन पूछ लेते हैं, एग्जाम के बाद भी लड़की पढ़ नहीं रही है। नंदिनी, माई एसक्यूएल क्या है? एसक्यूएल और माई एसक्यूएल में अंतर क्या है? लो, यस सर। क्या नाम है? तो माई एसक्यूएल और एसक्यूएल में अंतर क्या है? डेली क्लास में बेसिक करेंगे। What is difference between SQL and MySQL? Are you in class? Hello? Don't search in ChatGPT. Otherwise, I can track your IP address. Okay? What is difference between MySQL and SQL? And for what purpose you are studying the MySQL? If anyone will ask, you are learning the MySQL. Where will we use MySQL in our software? Why it is useful app? For what purpose you are using? You have any idea? No? No. Okay. Kunal, what is the difference between SQL and MySQL? Why we are studying, yeah, why we are learning MySQL? Do you have any idea? For what purpose we are learning? The same question I will ask you, why we are learning the HTML? Why we are learning JavaScript? Yeah, why we are learning the CSS? So same like this question, if I will ask you why we are learning the MySQL, what will you give the answer? Okay, very good. Okay, so Nandini, this is the answer. MySQL is a software where the SQL is a structural query language. Or simply we can say that it is a kind of a computer language that is known as the query language, right? But this language is especially used for the interaction with the database. Like this, if someone will ask you what is the HTML, so you can say that the HTML is the markup language. So yeah, it is also kind of computer language that is used for the display the data in front of user, in front of the browser. Yeah, you can set the on the browser.
Okay, it is the used for the formatting the data. So if you have to give the answer like this, okay. From next day will be remember this one, okay. Hello, hello. You know Hello. why I'm asking you question? Because now you cannot give the excuse I am the 12th class student, I have the exam. We have to know the all basic things about the technology. Why you are studying, yeah, why you are learning the MySQL, where will be used this, what is the useful. Okay, everything you have to first of all you have to clear this basic thing. So MySQL generally we use for the store the data. Okay, so that's why it is known as the database, and especially if they will be asking the deep question, so you can say that the MySQL is a structural query language, means it will be a store data in format of the row and column. Okay, now will we come to the point. Our topic name is the normalization. Okay, so what is the normalization? Normalization is a process. For what purpose? This is the process like the cooking. So cooking is the process for the cook the food. So simple. This you can say that the key like the cooking is the process for making the food tasty. Yeah, not tasty. That is the different thing. So normalization is a process. Same like this. If someone will ask you what is the difference between technique, methodology, and process, that all things have the different thing. Okay, so methodology is the different thing, process is the different thing, and technique is the different thing. But if we'll talk about the process, so you can say that it will be give it will be provide some way, it will be give the some rule and regulation. Yeah, you can say that this will be provide some method that will be used to perform our task according to our need. So normalization is the process. So that is the simple concept. If anyone will ask you in the short answer about the normalization, so simply you can say that the normalization is a process. Now we'll be go in the deep. So for why we are using the normalization, yeah, for if it is a process where it is the work. So when you are designing the database, now I will be here. I will be open the marker. So if you are designing one database, so that database have lot of, you can say that the duplicate value, yeah, unnecessary value. So that value, how you can remove it, right? So you have one data, sorry, one table. In table have the lot of data, and but in that table have the some similar value. So for removing the duplicate value, yeah, unnecessary data, we are using the normalization process. So that is the technically that word is known as the redundancy. So if someone will ask you what is the meaning of redundancy, so simply we can say that the remove the unusable data, yeah, unnecessary data. Yeah, you can say that the duplicate data that are stored in the table. So organizing data to reduce the redundancy and improve the data integrity. Data integrity means some data have some data you already stored in the table that are not properly to integrate to each other. Okay, so for this purpose you are using the normalization. If another they will ask you the some limited question, yeah, in the short, what is why we are using the normalization. So simply you can say that the eliminate data redundancy means reduce the duplicate data. Like this, if you will give the example, have one table. Okay, so in this table, this database is related to the supermarket. So like Nandini, yeah, Ritisha, they are going every day in the same supermarket. That supermarket owner is the Kunal. Okay, so the Kunal already developed one software. In that software they told we will be come to buy anything in the my supermarket. First of all they will be provide some basic information. But same customer visiting every day that supermarket. So in that supermarket, say Nandini, Pami, or Ritisha, every day they are visiting that supermarket, so that mobile number will be stored every day in that database.
but number will be same. So it will be take the space. It is not the good database integrity. You can say that the because this all data are the similar. So how we can remove it? How your database can be the good? So for remove the duplicate data, we are using the normalization. Okay, that is the first concept. Next, improve the data integrity. Same thing. Data integrity means that already I given the example. If you want to add two things, that is known as the integrity. Next, third one, enhance the query performance. Enhance means the simple, if you will talk about the Hindi, enhance means the बढ़ावा देना. ठीक है, तो query performance, if you are writing the query for insert the data या update the data या delete the data या select the data या any kind of query you are writing, so for it is the giving the better performance. For that purpose, you are using the normalization. Next, reduce, update, and anomalize means prevent issue when the inserting, updating, and deleting the data. So that time it is the very useful. So you can give the some basic concept about the normalization. This all concept I am teaching related to the like the exam interview, and this is also this is the exam. If you will talk about the in case of the exam, this is also a important topic. And if we will discuss about the interview purpose, definitely some interviewer will be ask you question: what is the difference between the 1F and 2F? Why you are using the 1F? Okay, so we'll be seeing the later, but this is the important topic for the exam as well as the interview. Now we'll be discuss about the types of normalization. So in the MySQL Hub, yeah, you can say that the DBMS, database management system, they are providing the 6 type of normalization. Two normalization will be see the practically, and remaining I will be explain theoretically, but approach will be same, so everyone can perform the that concept. Okay, so everything first I will be give the explanation in the theoretically, and then will be see the practically. So from here will be see the one by one concept. Okay, so here we cover 2 points. One, what is the normalization, and why we are studying the why need a normalization. Next, the topic is the type of normalization. So here will be a start from the first topic. What is the 1F? So 1F is the type of normalization. Okay. So now we'll be see the why we are using the normalization, and if you will be not use the one first normal form, what issue will become in our table. Okay. So now we'll be clear this point. So 1F, first normal form. 1F full form is the first normal form. Okay, so it is generally used for remove the duplicate columns. Okay, so if in the in one single table have the two similar column, and in one column have the like the unnecessary data, yeah, unnecessary value, for removing this we are using the 1F. Okay, so here each column contain atomic value. What is meaning of atomic? Not atomic, the atom bomb. If you are going to use the atom bomb, so Pakistan will be destroyed. Okay, not that the atom. This atomic means the individual, single. Okay, who is the single person? Tomorrow is not the good day, like the Kunal. Okay, Kunal, tomorrow tomorrow is the very special day. So if you are an atomic person, so tomorrow day for your tomorrow day is the normal day, but who is not atomic, right? Gunjan, you are a atomic person, yeah, you are a double person. Gunjan, Gunjan will sir, why you are distracting to the point? Okay, you Yes, are sir. listening carefully. I'm asking question. You are a atomic person, yeah, you are a double person for tomorrow. हम सर अकेले. Okay, so atomic means the individual, single. Okay. Yes, sir, individual. हाँ. So each column contain atomic individual value. Each column contain value of the single type. What is meaning of single type and single value? So single type means the data type will be same, and value atomic must be single value. So both have the basic difference. Okay. So table has the primary key to identify the each row uniquely. Okay. You already know the concept about the
primary key. So now we will be see the here theoretically, then we will be come to the practically. So because if you are going to write the exam, theoretical portion is the very very important. If you will be not write the theory, they will be not give you answer, right? Sorry, they will be not give you marks. सर So yes, ये क्वेश्चन नॉर्मलाइजेशन यदि 12 नंबर में पूछेगा तो इसका टाइप सब लिखना पड़ेगा सर? yes, everything you have to explain. And one of the very famous, yeah, you can say the important question of related to university, not in the Yes. in your university. Every university they are asking question. If we'll talk about the Anna University, if we'll talk about the RGP University, anywhere they are asking same question, because this is the very important topic. Okay, so now, so here we have one table. In that table, a student ID, name and subject. So this table have unnormalized table, means we didn't apply the normalization, but this simply we created one table. How to create the table you already know, right? How you can create a table. Now we'll be see the practically, don't worry. First we will be clear the theoretically. Okay, so this table have 3 column: a student, name and subject. But if you will be see in the subject, there have 2 value in the same column: math, science, English, math and science. This value, okay, so this is the unnormalized table. So you can say that the subject column contain multiple value. You already see here, right? So this the subject have they are containing math and science, English and math and science. Here you can say that the math have the 2 places, means you can say that the here have some duplicate value. So this will be also work in the database, okay. But if you have one idea, so that data can be contained only in the single column. So how we can remove it? For this purpose we will be use the 1F. Okay, so now I will be discuss in the Hindi, because I know some guys have the English problem, because this is the important topic and everyone will be write the exam. So now I will be explain in the Hindi. So देखिए, अब हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि 1F एक्चुअली हम लोग यूज क्यों करते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक अपना टेबल है, राइट। इस टेबल में 3 कॉलम है। एक कॉलम है स्टूडेंट आईडी, दूसरा है नेम और सब्जेक्ट। जो सब्जेक्ट कॉलम है इसमें 2 वैल्यू है, मैथ भी है, साइंस भी है, इंग्लिश मैथ है, और मैथ जो है ये डुप्लीकेट वैल्यू है। तो अब यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि यहाँ पे जब हम लोग 1F को यूज करते हैं, मतलब कि फर्स्ट नॉर्मल फॉर्म को, तो ये कहता है कि आप क्या करो कि ये जो डेटा है जिससे बिलोंग करता है उसका आईडी सेम डाल के इसको क्या कर दो, अलग अलग कर दो। तो अब सिंपल सा इसमें हुआ क्या कि कॉलम सेम ही है, लेकिन मैथ, साइंस, इंग्लिश, मैथ, साइंस क्या हो गया, अलग अलग हो गया। यानी कि एक कॉलम में एक ही वैल्यू रहा। तो इस तरह से अगर आपको डेटा लाना है तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं 1F। सर हाँ, यस सर। नॉर्मलाइजेशन का मतलब यहाँ क्या हुआ सर? अनॉर्मलाइजेशन का मतलब हुआ कि हमारे पास एक टेबल है ऐसा, ठीक है, एक डेटाबेस में, लेकिन इस टेबल में क्या है, प्रॉब्लम है कि डुप्लीकेट वैल्यू है। एक सब्जेक्ट में 2, हाँ, एक कॉलम में 2 वैल्यू है। तो थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगा। इस डेटा को बाहर लाना होगा, साइंस को लाना होगा तो प्रॉब्लम आएगा। तो हम लोग क्या करते हैं ना कि इसको आसान बनाने के लिए, कि हम सभी चीज को आसानी से समझ सके, इस टेबल को हम लोग इस टेबल के फॉर्मेट में बना देते हैं। यहीं पे अप्लाई होता है हमारा 1NF। अब देखो इसे हुआ क्या, पहली बात की कॉम्प्लेक्सिटी और आसानी से चला गया। हम किसी भी डेटा को आसानी से पढ़ सकते हैं, किसी भी डेटा को बाहर ला सकते हैं। तो अब कोई पूछेगा कि सर यहाँ भी अमित है, यहाँ भी, अरे नाम से अलग अलग है, नाम सेम है, लेकिन नाम सेम है तो इससे नाम से तो ये अगर हम लोग एक अमित लिख देंगे नेम, तो ये पूरा सब्जेक्ट आ जाएगा, उसमें मैथ है, साइंस है, आईडी डाल दिए 1 तो दोनों आ जाएगा। लेकिन इसको हम लोग को सिंगल लाना होता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है। तो कॉम्प्लेक्सिटी को रिमूव करने के लिए अब कोई पूछेगा क्या कि सर बिना नॉर्मलाइजेशन के काम नहीं चल सकता है? चल सकता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन हम लोग यूज ही करते हैं किसके लिए? तो ये कारण है आपका यहाँ पे, जैसे मैंने बताया कि डेटा को मतलब डुप्लीकेट डेटा को जो है ना कि रिमूव करने के लिए, इसकी इंटीग्रिटी को इंप्रूव करने के लिए, उसकी क्यूरी को परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए ये थोड़ा एडवांटेज है, इसलिए हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। कोई पूछेगा
कुणाल पूछेगा सर क्या मैं पढ़ाई नहीं करूंगा तो शादी नहीं हो जाएगा? हो जाएगा शादी, लेकिन पढ़ाई क्यों करते हो? पढ़ाई इसलिए करते हो कि क्या बोलेगा, दहेज ज्यादा मिल जाएगा, अच्छी लड़की मिल जाएगी, अच्छा मिलेगी, गाँव देहात में इज्जत होगा, नहीं तो शादी तो हो ही जाएगा ऐसे भी। नगड़ी मिलेगी सर। तो स्टडी क्या है? एक प्रोसेस है, किसके लिए? अपने माइंड को ब्रिलियंट बनाने के लिए। तो लोग समझ गया होगा, इस भाषा में तो समझ ही जाओगे, ठीक है। तो अब इसी को हम प्रैक्टिकली करते हैं, ठीक है। ये क्लियर हुआ थ्योरेटिकली क्या होता है, कैसे काम करता है ये? यस सर। नीति से क्लियर हो गया? नीति यस सर। खाना खा रही थी? सो गई। हाँ हाँ। नीतिशा, नो सर, यहाँ पे इंटरनेट इशू है तो आपका आवाज आ रहा है जा रहा है। अच्छा ये बताइए पढ़ाई क्यों करते हैं हम लोग? पढ़ाई क्यों करते हैं? ब्रिलियंट बनने के लिए। ठीक है, नंदिनी से पूछो, नंदिनी नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरत है? क्या बिना नॉर्मलाइजेशन काम नहीं चल सकता है? सर हम्म? हेलो। हाँ, नॉर्मलाइजेशन क्यों जरूरी है? होता क्या है? स्टडी क्या है? टेक्निक है, मेथड है, प्रोसेस है? मैथड। स्टडी क्या है? कुकिंग क्या है? कुकिंग, कुकिंग खाना है, पानी पूरी है, या बर्गर है, पिज्जा है, क्या है कुकिंग? बनाना है। बनाना है कि प्रोसेस है? वही है प्रोसेस। अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ठीक है। पम्मी आप बताओ नॉर्मलाइजेशन के बारे में, क्योंकि ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो पूरा एक बार में खत्म हो जाएगा, 5 से 10 मिनट लगेगा, अब ज्यादा नहीं लगेगा। मेन कंसेप्ट यही है। पम्मी? सर नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है जो डेटा और बेस से डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करने में हेल्प करता है। अच्छा, अगर इसी पे हम क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि प्रोसेस में और मेथड में डिफरेंस क्या है, क्या बताओगे आप? कैसे उसको एक्सप्लेन करोगे? दोनों तो सेम ही है। सेम है? दोनों सेम नहीं है, अलग अलग है। विशेष बताओ। यस सर। मेथड और प्रोसेस में डिफरेंस क्या होता है? मेथड होता है किसी काम को करने का तरीका, और प्रोसेस? प्रोसेस होता है वो काम, मतलब कि जो चल रहा है, किया जा रहा है। वो तो आप वर्ड से बताएं, इसको टेक्निकली बताना है कि प्रोसेस जो होता है ना, एक प्रोसेस में मेथड यूज किया जाता है और मेथड खुद ही एक सोल्यूशन होता है। क्लियर हुआ कि इसको समझाऊं मैं? नहीं क्लियर हुआ सर। देखो मेरे को पता क्लियर नहीं हुआ। देखो मेथड होता है जैसे कि अगर हम लोग बोले कि यहाँ पे 2 + 2 को ऐड करना है, एडिशन एक मेथड है, ठीक है, जबकि कैलकुलेशन एक प्रोसेस है। अब कैलकुलेशन में मेथड यूज हो सकता है, जबकि मेथड खुद ही एक सोल्यूशन है। अभी भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? सर हाँ, क्या डिफरेंस है? देखो अब ये बात हुआ कि नॉर्मलाइजेशन जो है ना, कि ओवरऑल बोला गया कि नॉर्मलाइजेशन एक प्रोसेस है, लेकिन वन एफ जो है ना, या एक मेथड टाइप से बोल सकते हो कि इसको यूज करके हम लोग नॉर्मलाइजेशन को अचीव करते हैं, और ओवरऑल कंसेप्ट को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोसेस। तो नॉर्मलाइजेशन को डायरेक्ट बोलोगे कि नॉर्मलाइजेशन एक मेथड है तो गलत है, क्योंकि ये वन एफ एक मेथड हुआ कैसे करके कि वन एफ में ये बताता है किस तरह से आप सोल्यूशन फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। तो सिंपल सा टेक्निकली थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है कि जो प्रोसेस होता है वो प्रोसेस जो है ना कि हम लोग मेथड को यूज करते हैं और मेथड खुद ही एक सोल्यूशन होता है। जैसे वन एफ एक सोल्यूशन है, किसका सोल्यूशन है? कि यहाँ पे आपके दो अगर डेटा एक ही जगह है तो इसको हम लोग फाइनली ये रिजल्ट में सोल्यूशन किया, ठीक है ना। तो ये एक एनएफ वन एनएफ नाम के मेथड यूज किए, और जबकि ये यूज कहाँ पे हुआ? तो एक प्रोसेस में,
जैसे मैंने बताया एडिशन एक क्या है, मेथड है, और कैलकुलेशन एक प्रोसेस है। तो मेथड किसके अंदर में आ गया, कैलकुलेशन के। तो ये बेसिक डिफरेंस जो है ना कि टेक्निकली इसको एक्सप्लेन किया जाता है दोनों के बारे में, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन ओवर क्या हुआ, एक प्रोसेस हुआ, जबकि वन अप है उसके अंदर क्या है, एक मेथड है जिसको यूज करके हम लोग इस स्पेशली किसके लिए किया जाता है, वन एफ। तो देखो वन एफ में हम लोग पढ़ेंगे कि रिमूव डुप्लीकेट डेटा को रिमूव करते हैं। इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग को टू एफ में कि उसमें जो है ना कि एक आता है डिपेंडेंसी, और तीसरा में पढ़ेंगे हम लोग डिटर्मिनेंट। तो ये दो तीन वर्ड है, उसी में पूरा ओवरऑल क्लियर हो जाएगा। तो देखो वन एफ को यूज करके हम लोग क्या करते हैं, रिमूव डेटा को डुप्लीकेट करते हैं। अब यहाँ पे मैं समझाता हूँ आप लोग को टू एफ में कि ओवरऑल क्लियर करें, तब हम लोग प्रैक्टिकली पे आएंगे। देखिए टू एफ क्या करता है कि जो टू एन एफ होता है ये कहता है पार्शियली डिपेंडेंसी को रिमूव करता है। तो देखो बेसिक डिफरेंस एक बार बोलना है कि अगर वन एफ में और टू एफ मेथड में अगर डिफरेंस बताना हो तो आपको ये बताना है कि वन एफ जो यूज होता है वह डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है, जबकि सेकेंड एनएफ जो है ना पार्शियली डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए जो है ना कि क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। तो अब कोई समझेगा कि सर वहां डुप्लीकेट वैल्यू तो समझ में आ गया कि मैथ दो जगह है, ये पार्शियल डिपेंडेंसी क्या होता है। अब बताओ कि किसी को आइडिया है इसका मतलब, क्योंकि टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक एक वर्ड का मतलब ही जो है ना कि मेन चीज होता है। तो देखो यहाँ पे लिखा था डुप्लीकेट वैल्यू, तो समझ में आ गया। अब बताओ कि पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है, क्या होता है ऋतिक साहब पार्शियल डिपेंडेंसी। हेलो हेलो पम्मी, यस सर। पार्शियल डिपेंडेंसी का मतलब, डिपेंडेंसी का मतलब क्या होता है। और किसी दूसरे पे डिपेंड रहना, हाँ अब इसमें लिखा है पार्शियल डिपेंडेंसी, इसका मतलब कि ये पूरी तरीके से डिपेंड नहीं रहना, किसी किसी चीजों पर डिपेंड रहना। किसी किसी पे। तो देखो अब ये कह रहा है कि अब इसको समझते हैं। देखिए ये कह रहा है ना कि टू एन एफ वहां यूज करना है। अब आपको अपना दिमाग लगाना है कि अगर वन एफ मेथड है, टू एफ मेथड है, ये अलग अलग मेथड है, तो हम इसको यूज कहाँ करेंगे। तो जहां पे लगे कि डुप्लीकेट वैल्यू को क्या करना है, रिमूव करना है, तो डायरेक्ट माइंड में आएगा कि हाँ वन एफ, एक सर बताए थे एक वर्ड था डुप्लीकेट रिमूव वैल्यू, मतलब ठीक है ना, तो उसको यूज करेंगे वन एफ। लेकिन जब कभी बात आ जाएगा डिपेंडेंसी का, तो डिपेंडेंसी दो तरह के होते हैं, एक होता है पार्शियल डिपेंडेंसी, एक होता है फुली डिपेंडेंसी। जैसे अब खतरनाक एग्जांपल नहीं देंगे, अभी सीरियस पढ़ रहे हैं आप लोग, नहीं तो मैं जो है दूंगा सब लोग हंसने लगोगे। देखो पार्शियल डिपेंडेंसी, जैसे अगर हम लोग बात करें कि स्टूडेंट आईडी है, कोर्स आईडी है, और स्टूडेंट नेम है, कोर्स नेम है, तो ये जो स्टूडेंट नेम है ये बांदा स्टूडेंट आईडी पे भी डिपेंड है, और ये बांदा कोर्स आईडी पे भी डिपेंड है। अब समझो इसको, स्टूडेंट आईडी भी प्राइमरी की है, कोर्स आईडी भी प्राइमरी की है। अब बताओ कि दो डिफरेंट आईडी को, जो कि दोनों के ही दोनों यूनिक है, दोनों को जब कंबाइंड करते हैं तो हम लोग किस टाइप के की बोलते हैं, कौन बताएगा बताओ। जैसे स्टूडेंट आईडी यूनिक है, कोर्स आईडी यूनिक है, अब दोनों को मैं एक जगह कंबाइन कर दूंगा, तो बताओ कि उस टाइप के की को क्या बोलेंगे। कंपोजिट। कंपोजिट, कंपोजिट की बोलेंगे, ठीक है ना। तो देखो अब इसको ये बोल सकते हो कि अगर जैसे स्टूडेंट नेम है, तो आप बताओ कि स्टूडेंट जो है ये बंदा सिर्फ स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड है, नहीं डिपेंड है। ये किस पे है, कोर्स आईडी पे भी डिपेंड है, क्योंकि ये दोनों ही एक ही टेबल में है। तो इससे क्या होगा कि कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाएगा अपने टेबल का। तो अगर हम लोग ऐसा लॉजिक लगाए या ऐसा इसके जो है ना कि नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला है कि ये जो बंदा डिपेंड है ना, ये जो स्टूडेंट नेम है ये स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड रहे, और कोर्स नेम जो है कोर्स आईडी पे डिपेंड रहे, और कोर्स स्टूडेंट आईडी या कोर्स आईडी दोनों आपस में क्या रहे, लिंक रहे। अब इसको हमें क्या बनाना है, नॉर्मल बनाना है। तो देखो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर जो है ना नॉर्मलाइजेशन है इतना इजी नहीं होता है कंसेप्चुअली समझने में। तो अब हम लोग इसको क्लियर करते हैं कि अब हम इसको कर क्या सकते हैं। जैसे अब इसको जो है ना कि आसान भाषा में समझाता हूं मैं। देखो इसका एग्जांपल देंगे, आप लोग समझ चुके होंगे।
देखो ये कौन है, कुणाल है, और ये कुणाल का क्या है, टीचर है, और कुणाल के पास एक मोबाइल भी है जिसमें यूट्यूब है। ये बताओ कि कुणाल को पढ़ाई करना है तो ये दोनों पे डिपेंड है कि सिर्फ एक ही पे डिपेंड है? कुणाल बताओ। दोनों पे। दोनों पे डिपेंड है, लेकिन आज से कुछ साल पहले यूट्यूब था ही नहीं, तो स्टूडेंट डायरेक्टली किस पे डिपेंड रहता था? टीचर्स पे। टीचर पे। आप बोल सकते थे कि कुणाल फुली डिपेंड है किस पे, टीचर पे, जैसा टीचर पढ़ाएगा वैसा स्टूडेंट बन जाएगा। लेकिन आज के समय में स्टूडेंट पार्शियली डिपेंड है टीचर पे। क्यों डिपेंड है? इसीलिए आज का स्टूडेंट क्या है, टीचर को भाव नहीं देते हैं, बोलेंगे तू नहीं पढ़ाओगे हम यूट्यूब से पढ़ लेंगे। तो आप बोल सकते हो कि ये जो बंदा है ये टीचर पे भी डिपेंड है और मोबाइल पे भी, मैंने कि यूट्यूब पे भी डिपेंड है। तो आप बोल सकते हो कि ये टीचर्स पे फुली डिपेंड नहीं है, पार्शियली डिपेंड है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अगर हमें इस चीजों को, इसको फुली डिपेंड बनाना होगा तो क्या करेंगे, हम लोग कहेंगे कि इसका इसका डायरेक्ट रिलेशन बना देते हैं और इसका इसका डायरेक्ट रिलेशन बना देते हैं। तो अब इसको जो है ना कि टेक्निकली समझते हैं कि करना क्या है। अगर हम लोग क्या करते हैं ना कि अब है एक और चीज, अगर आपको 2NF यूज करना है तो उसके लिए आपको 1F आना चाहिए। अब इसका मतलब ये भी इस पे डिपेंड है। तो 1F क्या करता है कि 1F सभी को इंडिविजुअली डिपेंड करा देता है। जैसे देखो अगर हम लोग बात करें यहाँ पे तो स्टूडेंट वन, जैसे यहाँ पे नेम है अमित, तो अमित किस पे डिपेंड है, स्टूडेंट आईडी पे, डायरेक्ट इस पे डिपेंड है। तो अब अगर हमको आईडी पता है मैथ आ जाएगा। तो अगर आपको 2NF को अचीव करना है तो इट इज इन 1F, यानी कि 1F में होना चाहिए। अब पार्शियली डिपेंडेंस का मतलब मैंने समझा दिया, ठीक है। तो 2NF कब होगा, जब वो नो पार्शियल डिपेंडेंसी। अब देखो इसको हटा दो आप, पार्शियली डिपेंडेंसी मतलब क्या हुआ कि यूट्यूब पे भी है टीचर पे भी है। लेकिन अगर जैसे ही आपने नो पार्शियल डिपेंडेंसी लगाया, इसका मतलब ये हुआ कि वो बंदा यूट्यूब की दुनिया छोड़ दिया, टीचर पे हो गया, और नहीं तो टीचर पैसा ले रहा है तो टीचर की दुनिया छोड़ के यूट्यूब आ जाएगा। तो किसी एक पे डिपेंडेंट है। तो अगर दोनों चीज को रिसीव कर लिए तो क्या कहलाएगा, 2NF कहलाएगा। ठीक है, ये इसका कंसेप्ट हुआ। अब इसको अचीव कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे बोला जाता है कि आप क्या करो, इस टेबल को दो भागों में तोड़ दो। ठीक है ना, ये सारे प्रैक्टिकली है, मैं थ्योरेटिकली बता रहा हूँ, आप लोग प्रैक्टिकली बना दोगे, मैं भी बताऊंगा। देखिए यहाँ पे हम लोग क्या किए, एक टेबल बनाए, एक टेबल में स्टूडेंट आईडी डाल दिए और दूसरा में स्टूडेंट नेम डाल दिए। तो स्टूडेंट आईडी क्या हो गया, 1 2 3 अमित और राज। तो अमित किस पे डिपेंड है, 1 पे, राज किस पे डिपेंड है, 2 पे। अब दूसरा हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे इसको तोड़ देते हैं, कोर्स टेबल को। एक हो गया कोर्स आईडी और एक हो गया कोर्स नेम। तो अब मैथ जो है डिपेंड है कोर्स आईडी पे, साइंस डिपेंड है कोर्स आईडी पे। अब ये दोनों अलग अलग डिपेंडेंट हो गया। और फिर एक और हम लोग टेबल बनाए, एनरोलमेंट टेबल। और हम लोग ने क्या किया कि यहाँ पे जो आईडी था स्टूडेंट आईडी, उसको और कोर्स आईडी दोनों को हमने क्या किया, आपस में जोड़ दिया। तो अब बताओ कि जो टेबल अलग एक ही में जुड़ा हुआ था, हम लोग ने क्या किया, 3 अलग अलग टेबल बना के तीनों को आपस में जोड़ दिया। तो ये हुआ अपना नॉर्मलाइजेशन। अब इसको प्रैक्टिकली करना होगा तो कैसे करोगे, तो देखो क्या करना है आपको। सिंपल से एक डेटाबेस बनाना है, ये भी सिखा चुका हूं मैं। एक टेबल बनाना है, टेबल में क्या क्या डालना है, जो मेन टेबल बनाना है, स्टूडेंट जो है आईडी, इसको यहाँ प्रैक्टिकली मैं देता हूँ, बताओ प्रैक्टिकली बता दूं क्या, कॉपी पेस्ट करके, लिखने में तो टाइम लगेगा। चलो देखो ज्यादा थ्योरी पढ़ोगे ना तो प्रॉब्लम बता नहीं दीजिए होगा। सर। अब मैं प्रैक्टिकली डायरेक्ट बता रहा हूँ, कॉपी पेस्ट करके, ऑलरेडी आप लोग समझ चुके होंगे। चलो यहाँ से मैं समझा दे रहा हूँ, ठीक है ना, क्योंकि मैं कंसेप्ट बता चुका हूँ तब मैं समझा रहा हूँ, क्योंकि सारे चीज वही है, टेबल क्रिएट करना, डेटा डालना, इसमें टाइम लगेगा। चलो हम लोग क्या करते हैं, पहले 1F को अचीव करके देखते हैं। देखो सबसे पहले क्या करते हैं, अपने जाते हैं टेबल इसमें डेटाबेस में, टेबल डेटाबेस बना देते हैं, क्रिएट डेटाबेस। अब नॉर्मल, ज्यादा सीरियस मत हो जाओ, कुछ बोलते रहो, क्योंकि प्रैक्टिकल मजा आता है, थ्योरी पढ़ने में बोरिंग होता है। क्रिएट डेटाबेस,
टेबल का नाम क्या जाता है? नींद। ठीक है ना? अब नींद को यूज करते हैं हम लोग, नींद को यूज करके सो जाओ। अब यहाँ पे मैं टेबल बना रहा हूँ, देखो मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग समझते रहना, सारे चीज आप लोग को पता है। टेबल का नाम है स्टूडेंट 1F, ठीक है ना? तो इसको मैं क्या किया, कॉपी किया, ठीक है ना? तो अब देखो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी और सब्जेक्ट हमने प्राइमरी की में लिखे, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कंपोजिट की बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके हम लोग क्या कर देंगे, कहाँ पे एरर है? यू हैव एरर इन एसक्यूएल सिंटैक्स चेक। देखो तो इधर क्या है, पामी देखो तो कहाँ पे गलत है? स्टूडेंट आईडी हो गया, नेम हो गया। और ब्रैकेट बंद होगा हाँ हाँ, सर, एक और ब्रैकेट होगा। सही बोले सही बोले। हो जाएगा ना? यस सर। रुको, तो यहाँ पे मैं चेंज कर देता हूँ। चलिए टेबल बन गया, ठीक है ना? इसको डिस्क्राइब करते हैं हम लोग। बस सारे कंसेप्ट वही है, नॉर्मलाइजेशन सीखना है, तो टाइम बचाने के लिए मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। देखिए टेबल बन गया अपना, ठीक है ना? अब हम लोग क्या करते हैं, इसमें डेटा एंटर करते हैं। चलिए अब टेबल को क्या करते हैं, बाहर चेक करते हैं, वैसे टेबल बना है जिससे डेटा हम लोग देख रहे थे। यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम, और यहाँ पे लिख देंगे ये टेबल का नाम। चलिए ये अपना टेबल था। अब इसमें हमें क्या करना है ना, कि 1F अप्लाई करना है। अब ये तो अलग टेबल हो गया, एक सेकंड, ये गलत है। ये ऑलरेडी जो है ना कि क्या है, बना हुआ है पहले। अप्लाइड है सर। हाँ ये वो जो है NF अप्लाई है, जबकि पहले ये बनाना था हम लोग को। चलो ये भी बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल को बना लेते हैं, जस्ट उल्टा हम लोग समझ लीजिए। चलो अभी एक टेबल बन गया, ठीक है ना? अब यहाँ पे लिख देते हैं, डिस्क्राइब थोड़ा सा ध्यान ही नहीं दिया आप लोग। यहाँ पे लिखा है स्टूडेंट अननॉर्मलाइज, ठीक है? अब इसमें डेटा एंटर कर देते हैं हम लोग। ठीक है, अब डेटा को डिस्प्ले करते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट फ्रॉम, और यहाँ पे ये डाल देंगे हम लोग स्टूडेंट, टेबल का नाम। तो देखिए ये अपना टेबल था और इसको नॉर्मलाइज किए हम लोग। तो ये कैसे नॉर्मलाइज हुआ, तो हम लोग ने क्या किया कि इस डेटा को अपना अलग अलग बना दिया, स्टूडेंट आईडी नेम एक अलग से टेबल बनाए, और इस टेबल में मैन्युअली डेटा इंसर्ट किए। तो दोनों ही डेटा क्या हुआ, इंसर्ट हुआ टेबल में, लेकिन दोनों में अंतर है। ये वाला डेटा ऐसा था, और आफ्टर 1F में इस तरह से डेटा हो गया, 1 डिपेंडेंट हो गया, ठीक है ना? अब यहां से हम लोग समझते हैं 2F जो है ना, इसको देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि एक टेबल बनाते हैं। देखिए उसी में मैं टेबल बना रहा हूं। तो अगर ये टेबल बनाएंगे तो ऑलरेडी इसमें बना हुआ है, तो मैं क्या करता हूँ ना कि डेटाबेस का नाम चेंज कर देता हूँ। चलिए यहाँ पे मैं क्रिएट डेटाबेस, और हम लोग बना देते हैं NDP, पता ना क्या है, चल कुछ भी है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको यूज कर देते हैं, पहले यूज NDP, ठीक है? और हम लोग क्या करते हैं ना कि टेबल बनाते हैं। अब ये टेबल को हम लोग कॉपी पेस्ट कर दिए, अब इसको डिस्क्राइब करेंगे। तो टेबल का नाम क्या है अपना, 1F, ठीक है? अब इस टेबल में हम लोग क्या करते हैं, देखिए दो प्राइमरी की है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। आप इसको बोल सकते हो ये क्या है, कंपोजिट की है, ठीक है ना? तो यहाँ पे प्राइमरी की में बना हुआ है क्या है, स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी। तो ये क्या हो गया आपका, कंपोजिट की हो गया, ऑलरेडी आप लोग को ये पता है। अब हम लोग क्या करते हैं ना कि डेटा इंसर्ट कर देते हैं।
डेटा को चेक करते हैं पूरे को सिलेक्ट करके, फ्रॉम ये डाल देते हैं स्टूडेंट, एक सेकेंड, ठीक है। अब इसमें हमें क्या करना है ना कि इसमें 2NF अप्लाई करना है। तो देखिए जैसे स्टूडेंट नेम है ये स्टूडेंट आईडी पे डिपेंड है, जबकि दोनों दो प्राइमरी की है, ठीक है ना। कोर्स नेम जो है ना ये डिपेंड है किस पे, कोर्स आईडी पे। तो अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे अप्लाई करते हैं 2NF। अब यही से मैं समझा देता हूँ आसानी से। देखिए अगर आपको 2NF को यूज करना है तो सबसे पहले आपको एक इसको अलग अलग भागों में क्या करना पड़ेगा, बांटना पड़ेगा, टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं कि 3 टेबल बनाते हैं। एक टेबल बनाते हैं किसके नाम से, स्टूडेंट के नाम से। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं एक टेबल बना लेते हैं, ठीक है। तो एक टेबल बन गया स्टूडेंट के नाम से। अगर हम लोग इसको डिस्क्राइब करें और यहाँ पे डाल दिया स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, तो अपना ये एक टेबल बन गया है जिसमें है स्टूडेंट आईडी है और स्टूडेंट नेम है, ठीक है। इस तरह से इसमें हम लोग क्या करते हैं डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। तो वही डेटा को हम लोग क्या कर देंगे, इंसर्ट कर देंगे। अब इसको अगर आपको चेक करना है तो यहाँ पे लिख देंगे सिलेक्ट फ्रॉम स्टूडेंट, STUDENT स्टूडेंट, स्टूडेंट। तो देखिए ये क्या हो गया, स्टूडेंट आईडी जो है या स्टूडेंट नेम इस पे डिपेंड करने लगा, जो कि एक ऑलरेडी प्राइमरी की है, ठीक है। अब इस तरह से हम लोग क्या करते हैं ना कि दूसरा एक टेबल बनाते हैं किसके नाम से, कोर्स के नाम से। थोड़ा फास्ट हो रहा है, बाकी आप लोग समझ चुके होंगे, इतना पढ़ लिए हो तो MySQL, ठीक है ना। अब मैं डिस्क्राइब नहीं करने जाऊंगा, डिस्क्राइब करेंगे तो पूरी इस तरह से दिख जाएगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं डेटा को इंसर्ट कर देते हैं। देखिए अगर हम लोग डेटा को देखें तो यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे फ्रॉम और कोर्स। देखिए ये जो कोर्स नेम है किस पे डिपेंड हो गया, कोर्स आईडी पे। अब हमें क्या करना है कि एक और टेबल बनाना है जो स्टूडेंट आईडी और कोर्स आईडी में क्या हो, अपना एक खुद का रिलेशन हो। तो चलिए हम लोग इस बार बना लेते हैं टेबल इनरोलमेंट के नाम से। और यहाँ पे हमें क्या करना है कि दोनों को आपस में लिंक करना है। तो हम लोग ने क्या यूज किया, फॉरेन की। अब कोई पूछेगा कि सर फॉरेन की क्यों, क्योंकि फॉरेन की से क्या होगा कि आपका स्टूडेंट आईडी स्टूडेंट से ऐड हो जाएगा और कोर्स जो है ना कि कोर्स से ऐड हो जाएगा, क्योंकि दोनों का आपस में क्या होना चाहिए, रिलेशन होना चाहिए। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं दोनों को, ये भी मैं कल बताया था ज्वाइन वाले में, ठीक है ना। या जब फॉरेन की क्यों यूज करते हैं, अगर देखिए अब ये जो है ना कि दोनों टेबल आपस में क्या हो गया, कनेक्ट हो गया इंटरनली। अब जो कनेक्ट हो गया तो इसमें हम लोग डेटा इंटर कर देते हैं। चलिए हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डेटा को इंटर कर देते हैं। अगर आपको इस डेटा को चेक करना है कि डेटा जो है ना कि ऐड हुआ है कि नहीं हुआ है, तो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कंसल्ट सॉरी सिलेक्ट और यहाँ पे लिख देंगे फ्रॉम और ये अपना टेबल का नाम। देखिए अब जो है ना कि स्टूडेंट आईडी ये तो आपस में इंटरनली इंटीग्रेट है, लेकिन ये आपस में इस टेबल को भी इंटीग्रेट करके रखा है, दोनों को जोड़ के। कैसे जोड़ के रखा है, तो यहाँ पे फॉरेन की के माध्यम से जोड़ के रखा है, ठीक है ना। स्टूडेंट आईडी को स्टूडेंट से जोड़ दिया है और कोर्स आईडी को कोर्स से जोड़ दिया है। तो आप बोलोगे कि सर इतना काम करने की जरूरत है जब हमारे पास ये टेबल था ही, ये तो इसी से काम चलाते। तो पहले भी बता दिया हूं कि ये एक प्रोसेस है जिसको इम्प्लीमेंट करके हम लोग अपने क्या करते हैं डेटा के कम्प्लेक्सिटी को कम करते हैं। तो ये आपका एक प्रैक्टिकली जो है ना कि ये कंसेप्ट है, मैं कॉपी पेस्ट करके बताया, कॉपी पेस्ट। अगर आप लोग खुद से ट्राई करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीजें क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। बस सारे प्रीवियस कंसेप्ट अप्लाई करना है, बस जो है ना कि यहाँ पे कंसेप्ट थोड़ा सा अगर आइडिया है तो कर लोगे। अब बताओ किसी को डाउट है कि फिर से एक्सप्लेन करना पड़ेगा, बताओ। मैं थोड़ा फास्ट बता दिया, ठीक है ना। आप लोग कॉपी पेस्ट करके सीख जाओगे, PDF में सेंड कर दूंगा। हार्ड है ना, अभी बता दीजिए सर। देखो क्या हार्ड है ना? बता देंगे, सुबह बता। देखो अगर आप कोई पूछ दे आपसे एक लाइन में, आप बताओ 1F में और 2F में अंतर क्या है, कौन बताएगा, खुद से बताओ।
1F और 2NF में अंतर क्या है? सर कोई एक बताओ। वन हाँ, यस। एफ में टोटल डिपेंड रहता है और टू एफ में पार्शियल डिपेंडेंसी रहता है। नहीं, पार्शियली डिपेंडेंसी को तो ही रिड्यूस करने के लिए हम लोग 2NF यूज करते हैं। 1NF में एटॉमिसिटी रहता है और सेकंड एन में पार्शियल डिपेंडेंसी को कम किया जाता है। हाँ, पार्शियल डिपेंडेंसी को कम किया जाता है। मतलब जैसे मैंने बोला कि टीचर से और यूट्यूब से दोनों से कुणाल का रिलेशन था, तो अगर उसको एक टेक्निक लगा दे, क्या टेक्निक लगा दे कि उसके रिचार्ज ही ना कराए, तो रिचार्ज नहीं कराएगा तो यूट्यूब नहीं देखेगा, तो किस पे डिपेंड रहा? टीचर पे। कॉलेज जाएगा डेली, तो वो एक क्या होगा, रिचार्ज ना कराने का क्या है, टेक्निक है। यानी मतलब कहे कि जो है ना कि हम रिचार्ज नहीं कराएंगे तो ये अब कोई पूछेगा दोनों में डिफरेंस क्या है, तो आपको ये बताना है कि पार्शियल डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए 2NF यूज करते हैं और डुप्लीकेट वैल्यू को रिमूव करने के लिए 1F यूज करते हैं। ये है बेसिक डिफरेंस, और ये इंटरव्यूअर में पूछा जाएगा। अगर मैं इंटरव्यू लूं किसी से अगर डेटाबेस पे, तो ये जो है ना कि पक्का पूछूंगा। और दूसरा एक लॉग होता है, लॉग में तैयार नहीं हूँ, ट्रिगर में होता है, उसको बता दूंगा कैसे हो जाता है। ठीक है, ये दो कंसेप्ट है। अब यहीं से सारे कहानी क्या होते हैं, समाप्त होते हैं, क्योंकि अब 3NF में क्या आएगा, सेम चीज आ जाएगा। चलो मैं बता देता हूँ, लेकिन एक चीज इसमें नया एक वर्ड आएगा, उसको समझा देता हूँ। देखिए, अब आता है 3NF में ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इसका मतलब क्या हुआ, एक पढ़े पार्शियली, एक पढ़े फुल्ली, और एक आ गया ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। आप बताओ कि इस वर्ड का मतलब, जो इंग्लिश मीडियम में पढ़ के लाखों रुपया खर्च किया है, वो बताओ कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे कि रितिशा पढ़ी है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, पम्मी पढ़ी है इंग्लिश मीडियम स्कूल में, ठीक है ना, कुणाल पढ़ा है चरवाहा स्कूल में, तो नहीं बताएगा। चलो पम्मी या रितिशा बताओ, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? सर हम लोग मैथ्स में पढ़े थे ना कि अगर ए का रिलेशन बी के साथ है हाँ, और बी का रिलेशन सी के साथ है, तो ए का रिलेशन जो है ना वो सी के साथ भी होगा। अगर मान लो जैसे अब ये कहना चाहते हो कि अगर मेरा दोस्त अभिषेक है और अभिषेक का हाँ, दोस्त कुणाल है, तो कुणाल भी मेरा दोस्त हो गया। यस सर। हाँ, ये लड़का लोग यही टेक्निक लगाता है। जैसे देखो, अभिषेक का मैं बताता हूँ। अभिषेक बना लिया है सिस्टर, किसको, नंदिनी को और रितिशा को। अब ये कहता है कि मेरा नंबर दे दो आप अपने लोग दोस्तों को। बात बाकी आप लोग समझ चुके होंगे। रितिशा आप बताओ, ट्रांजिटिव का मतलब क्या समझती हो? सेम टू सेम। सेम कंसेप्ट है ना? सर चलिए, बहुत मतलब आप लोग पढ़े लिखे हो इंग्लिश मीडियम, तो उसको यूटिलाइज की हो। चलिए देखिए, मैं समझाता हूँ अब इसको, ठीक है ना। सेम कंसेप्ट वही है कि अगर मैं इसको समझा दूं, चलिए यहाँ पे टेबल बनाया है उसी समझा देता हूँ ताकि आसानी से समझ में आ जाए। हिंदी में है, देखिए एक टेबल है, ठीक है। इस टेबल में एक स्टूडेंट आईडी है और ये स्टूडेंट राज है, और टीचर कौन है, सारवा जी है, ठीक है। यहाँ पे लिख देना चाहिए था कौन, कुणाल, और यहाँ पे लिख देना चाहिए था मिस्टर राजेश सर। क्या कुणाल राजेश सर को सर मानते हो कि नहीं मानते हो? कुणाल, यस सर। सर मानते हो, दोस्त मानते हो, कुछ भी बोल देते हो, इसलिए दोस्त मानते हो ना, सर माना करो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट की बात मत करना। अब देखो, चलो पॉइंट पे आते हैं अपने। देखिए, अपना एक टेबल है, स्टूडेंट आईडी है, स्टूडेंट नेम है और क्लास टीचर है। तो यहाँ पे स्टूडेंट आईडी जो है ये एक प्राइमरी की है, तो स्टूडेंट नेम जो है इसका सीधा रिलेशन किससे है, उसके आईडी से है। जबकि जो टीचर है, क्लास टीचर है, ये स्टूडेंट के आईडी पर निर्भर नहीं करता है। ये किस पे डिपेंड करता है, क्लास टीचर, ये क्लास पे क्या है, डिपेंडेंट है। आप बोल सकते हो कि यानी कि क्लास टीचर को स्टूडेंट आईडी के वजह क्लास से क्या होना है, लिंक होना चाहिए था। तो अब कोई पूछेगा कि ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, तो आप बोल सकते हो कि स्टूडेंट आईडी यानी स्टूडेंट डिपेंड है टीचर पे और टीचर डिपेंड है क्लास पे। अब बताओ कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बोल सकते हो कि ये जो राज है क्लास से इसका रिलेशन है। समझ में आया?
देखो ये जो है ये क्लास टीचर किस पे डिपेंड है? क्लास पे। और ये स्टूडेंट किस पे डिपेंड है? टीचर पे। तो आप बताओ कि ये राज भी तो क्लास से क्या हुआ? डिपेंड हुआ। जबकि टीचर का डायरेक्ट रिलेशन किससे है? जबकि Yes. टीचर को इसके आईडी से लेना देना कोई नहीं है, लेकिन स्टूडेंट को अपना रोल नंबर भी देखना है, क्योंकि अटेंडेंस जरूरी है और क्लास भी जरूरी है, क्योंकि उसमें पढ़ाई नहीं करना है। जबकि टीचर को क्लास जरूरी है क्योंकि पढ़ाना है, भले स्टूडेंट आईडी से उसका अटेंडेंस ले या ना ले। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी। अब इस ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को रिमूव करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? 3NF यूज करते हैं। बाकी से वही कंसेप्ट है, बस यहाँ पे अब तीनों में डिफरेंस समझ में आ गया होगा कि 1F क्या करता है, 2F क्या करता है और 3NF क्या यूज करता है। तो पहले को समझना है डुप्लीकेट वैल्यू से, दूसरे को समझना है पार्शियली डिपेंडेंसी से, और तीसरे को समझना है आपको ट्रांजिटिव डिपेंडेंसी को एलिमिनेट करने के लिए, यानी कि रिमूव करने के लिए। बाकी कहानी सेम है, आप लोग समझ चुके होंगे। 2-3 मिनट है तो इसको भी समझा दूं ताकि आप लोग 12 नंबर को लिख सके। तो और सर हम चेक में क्वेश्चन दिए, आप क्या दिए हो बताओ? अच्छा तो में लिखे हैं सर, देखिए ना। अच्छा पहले इसको समझा दूं मैं, ठीक है ना? अब ठीक है एक सर। नया वर्ड आया, एक नया वर्ड आया डिटरमिनेट। चार चीज पढ़े, चारों में अलग अलग आया। तो अब बताओ कि जो भी इंग्लिश मीडियम के लोग हैं वो लोग बताओ डिटरमिनेट का मतलब क्या होता है? सब होगा इंग्लिश मीडियम से, लेकिन कोई बताता नहीं है। बताओ डिटरमिनेट का मतलब? रो इन कॉलम। आए क्या नंदनी बोली? सेट ऑफ एट्रीब्यूट्स। नंदनी क्या बोली आप? नहीं किसी आए कुछ नहीं सर। नहीं आप कुछ बोली तो बताओ ना, पावी बताओ। सर ये एक एट्रीब्यूट होता है जो किसी दूसरे एट्रीब्यूट के यूनिक वैल्यू को डिटरमाइन करता है। एट्रीब्यूट्स मतलब? प्रॉपर्टीज। हाँ। तो आप अगर इसको समझाना हो तो कैसे समझाओगे? डिटर्मिनेंट जो है एक प्रॉपर्टी होता है जो किसी दूसरे के प्रॉपर्टी को के बारे में बताता है। अच्छा चलिए नीतीश आप कुछ बोलोगे कि मैं समझाऊं? अभिषेक एक भी नहीं सर बोला। समझा दीजिए आप। अभिषेक आप बताओ, लेकिन टाइम होने वाला है ना फिर मीटिंग का। चलो देखो इधर, यहाँ पे जो है ना एक टेबल है, रोल नंबर है जो प्राइमरी सर की है। हाँ मेरे यस, यहाँ नेटवर्क इशू है। अच्छा अच्छा ठीक है। देखिए इधर, यहाँ पे जो है ना कि आपका एक रोल नंबर है और स्टूडेंट नेम है और क्लास है। तो यहाँ पे जो रोल नंबर है, रोल नंबर इज डिटरमिनेट बिकॉज रोल नंबर इज यूनिक एंड डिटरमाइन बोथ क्लास स्टूडेंट एंड नेम। देखो ये जो बंदा है, ये जो क्लास रोल नंबर है, ये स्टूडेंट के क्या है लिए भी यूनिक है, और ये क्लास 10th के लिए भी क्या है यूनिक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिटरमिनेट। जबकि उसका नाम क्या है वो भी एक एट्रीब्यूट्स है, और क्लास भी क्या है एट्रीब्यूट्स है। किसका एट्रीब्यूट्स है? तो एक स्टूडेंट का। जैसे अगर हम लोग बात करें कि कुणाल है, तो कुणाल का नाम, तो नाम जो है ना प्रॉपर्टीज है, उसका क्लास एक प्रॉपर्टीज है, एट्रीब्यूट्स है। इस दोनों को यूनिकली क्या करता है? बाइंड करता है। किससे? उसके रोल नंबर से। ठीक है, तो अब इसके यहाँ पे समझ लो कि रोल नंबर सब्जेक्ट टुगेदर फ्रॉम द कंपोजिट। अब इसको अगर आपको क्या करना है कि अचीव करना है, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि जो है ना कि फॉरेन नेट नहीं बोलता है, इसको बोलते हैं हम लोग, क्या लिखा हुआ है? यहां तक तो बॉय लिखा है, और यहां तक वॉइस कॉड नॉर्मल फॉर्म। हाँ ठीक है, इसको पढ़ लेना, मेरे को नहीं पढ़ने आ रहा है। आप बोल सकते हो कि जो ये क्या नाम है कैंडिडेट की होता है, इसी को हम लोग क्या करते हैं? एलिमिनेट करने के लिए हम लोग यूज करते हैं किसको? BCNF को।
ठीक है, बाकी ये सारी चीज लिखा हूं उसको समझ लेना। अब टाइम खत्म हो रहा है। 4NF है, इसमें भी कहता है कि मल्टी वैल्यू डिपेंडेंसी, अगर एक से ज्यादा चीज क्या है डिपेंडेंसी है, तो इस चीज के लिए तब बोला जाता है कि 4NF वही हो सकता है जो क्या हो BCNF हो। इसमें मल्टी वैल्यू क्या करेंगे, नहीं रहना चाहिए, इस चीज को रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। और एक है 5th नॉर्मल फॉर्म, जो कि ज्वाइंट डिपेंडेंसी, यानी कि दो चीज आपस में ज्वाइन है, उस चीज को डिलीट करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, 6F करते हैं। तो ओवरऑल आप इसको एक दो लाइन में समझ सकते हो कैसे। पहला डुप्लीकेट, दूसरा पार्शियल डिपेंडेंसी, तीसरा ट्रांजिटिव, और चौथा डिटर्मिनेट, और जो है ना कि 1 2 3 4 हो गया ना, और 5th क्या होगा, ज्वाइन। 6 है ना, हाँ BCNF, और एक है ज्वाइन डिपेंडेंसी। ज्वाइन मतलब दो चीज आपस में कनेक्टेड है, उसे डिफाइन करें। जैसे कि कुणाल जो है ना किससे कनेक्टेड है, फैमिली से भी कनेक्टेड है और पगली के फैमिली से भी कनेक्टेड है। यस सर। एक डिपेंडेंसी को क्या करना है, हटा देना है, तो क्या करेगा, पगली को शादी करके अपने घर ला देगा। आज के समय में क्या करेगा, कुणाल पगली के घर ही चला जाएगा शादी करके। चलिए, ये ओवरऑल कहानी है, आप लोग पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है ना। अगर समझ में आएगा तो भी ठीक है, नहीं समझ में आएगा तो आप लोग ट्राई कर सर थोड़ा सा देखिए ना, इसी से रिलेटेड एक तो है, चैट में भेजे हैं सर, देखिए ना। किधर है, किधर है, किधर है, कुछ समझ में आया क्लास है। स्कीमा Yes, sir. फंक्शनल डिपेंडेंसी, मारेंगे तो सोच हो जाएगा, इसे पढ़ लेना खुद से। स्कीमा मतलब क्या होता है, यही तो पूछे सर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। स्कीमा मतलब डिजाइन होता है। जैसे अब देखो ओवरऑल यहाँ डिजाइन। हाँ देखो, अब ये जो है ना फंक्शनल डिपेंडेंसी कर रहा है, तो फंक्शन जो अलग अलग बनाए हो, जैसे मान लो एग्रीगेट फंक्शन है, और उस एग्रीगेट फंक्शन में सब कुछ डिपेंडेंसी है। चलो बहुत पढ़ लिया आप लोग। कल जो है ना कि लास्ट टॉपिक इसको द एंड करेंगे हम लोग, और फिर कल कौन सा दिन है, मंडे से मोंगो डीबी स्टार्ट करना है। ये कौन सा दिन है बताओ। थर्सडे है आज सर, कल हो जाएगा। फ्राइडे। तो फ्राइडे, चलो सैटरडे को छुट्टी दे देते हैं एक दिन। ऐसे भी सैटरडे को मैं ना शाम को पढ़ाने के बाद जो है ना कुछ काम नहीं करता, पढ़ाता है सब बंद करके सो जाता हूँ मैं, एक दिन तो सोने को मिलता है। ठीक हो जाएगा सर, 17 को फिर मेरा एग्जाम है।